a lot for spending your time for us, sir. Participant time to start our first session, and our resource person, Dr. Zaid Anwar, is here with us. He is currently associated with University of Engineering and Technology, Lahore, and he has vast experience in teaching training, and he has an excellent researching skills as well. Over to you, sir. You can start the session. Thanks a lot for conducting this session. थैंक यू वेरी मच बिलाल साहब जस्ट काइंडली ये कंफर्म कर दें कि आप लोगों को ऑडियो और सिग्नल आ रहा है स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी यस सर, आपकी स्क्रीन विजिबल है, गूगल क्लासरूम की फर्स्ट स्लाइड ओपन है। अगर आप सर ड्यूरिंग द सेशन पार्टिसिपेंट के साथ इंटरेक्ट करना चाहते हैं या एट द एंड ऑफ द सेशन, वो मैं खुद से कंट्रोल कर लूँगा मैं गूगल क्लासरूम जब हम चलें ओपन एट करते हैं तो ओके माइक यू कैन माइक ऑन कंट्रोल करते हैं योरसेल्फ, बट करंटली ये लोग इनके माइक डिसेबल्ड है। ओके ओके थैंक यू वेरी ओके, मच थैंक यू सर, थैंक यू। यू कैन स्टार्ट द सेशन सर। ओके डियर ऑल वेलकम टू टुडेज सेशन आज के सेशन में वी आर बेसिकली गोइंग टू टॉक अबाउट three different search tools which we can use for the purpose of delivering lectures remotely. You people are well aware that recently we have gone through this COVID pandemic, and we were forcefully asked to make use of these alternative tools which are available to us for the purpose of conducting uh, classroom activities remotely. So today we are going to talk about three different tools, namely these are Google Classroom, Microsoft Teams, and Zoom. So we are going to discuss the capabilities of each of these tools and what are the different features which are available to us while we are working with these online tools. So what we are going to do, we are going to start from Google Classroom. I will give you a brief overview of the different features and the capabilities which are available to us while we are working with the Google Classroom. And then we would be having a question and answer session. If you're having any questions, any comments, any observations, we can discuss them. And then we would be turning our focus on Zoom. Zoom की discussion के बाद once again we would be having a question and answer session, and in the last segment of today's session we would be discussing Microsoft Teams और उसकी डिस्कशन के बाद हम आज के सेशन को कंक्लूड करेंगे. So we are starting with the Google Classroom. So the only thing which you need if you are willing to make use of Google Classroom as a tool for conducting or delivering your lectures online is that the faculty member and the students, they need to have an account on Google. If you're having an account on Google, if you're having an account on Gmail, then what you can do, you can create a class where you can add students to those classes, you can deliver your lectures, you can post your assignments, you can post your quizzes, you can do the assessment remotely and online as well. What we are going to discuss in this session which we are having right now, we are going to see that how we are going to create a class in Google Classroom. After creation of the classes, we are going to see the procedure that how the students would be having access to those classes. Students को classes में add कैसे करेंगे. Then we are going to have an overview of how we are going to post assignments and how we are going to announce different announcements or how we are going to share any piece of information with our students. We are going to see and get an idea that how the assignments and the quizzes they can be graded and how we can provide feedback to the students regarding their assignments. And we are also going to have an idea that how we can use the Google platform for delivering lectures online. So these are the salient features of the today's session. Creation of a class, addition of the students to that class, delivery of the lecture, um, assignment, assigning an assignment or quiz to the students, grading that assignment or the quiz, and then integration of all these things with Google Drive. So what you have to do if you are working with Google Classroom, you need to visit this web link which is called as classroom.google.com.
So if you have not signed in into your Google account, into your Gmail account, then your browser is going to ask you to get to sign up into your account. So the very first thing is this Google Classroom network, this Google Classroom platform is some such thing which is not going to be installed on your computer. ये आपके computer पे install नहीं होगा. This is some such thing which is going to work into your internet browsers. तो आप अपने कंप्यूटर पे जो भी इंटरनेट ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं उस ब्राउज़र में ये गूगल क्लासरूम का जो टूल है दिस वुड बी वर्किंग. सो द वेरी फर्स्ट थिंग जो जैसे कि आपको पहले बताया कि आपको यू नीड टू हैव एन अकाउंट ऑन गूगल. जीमेल पे आपको एक अकाउंट चाहिए. If you are having an account on Gmail and you are going to visit on this link which is called classroom.google.com, so if you are just going to hit on this link, so such kind of an graphical interface is going to appear in front of you. इस तरह का graphical area आपको appear होगा. If you have not used Google Classroom previously, अगर पहले से आप Google Classroom use नहीं कर रहे थे तो all this area would be appearing blank in front of you. तो ये सारे का सारा एरिया आपके सामने ब्लैंक अपीयर होगा. बिकॉज आई हैव यूज्ड गूगल क्लासरूम प्रीवियसली, सो जो भी क्लासेस मैंने क्रिएट की हुई थी दोज आर अपीयरिंग ओवर हेयर. तो अगर आपका भी केस ये है कि आप गूगल क्लासरूम पहले यूज़ कर चुके हैं, कुछ क्लासेस आपने क्रिएट की हुई हैं पहले से, तो हर क्लास का एक बटन आपके सामने अपीयर होगा इस इंटरफेस में. अगर नई क्लासेस क्रिएट की तो ये सारे के सारे एरिया ब्लैंक अपीयर होगा. सो द वेरी फर्स्ट थिंग वाज क्रिएशन ऑफ द क्लास. तो अगर आपने गूगल क्लासरूम पहले यूज़ नहीं किया, ये यूज़ किया भी है and you are interested in creation of a new class, what you have to do, आपको स्क्रीन के टॉप राइट कॉर्नर में जाना है. Over here this plus icon is available. You are going to hit on this plus icon, then you are going to get these two options. You are being asked that either you are interested in joining a class, कोई क्लास पहले से किसी ने क्रिएट की हुई है या आपने खुद क्रिएट की हुई है, उस क्लास को ज्वाइन करना चाह रहे हैं, या आप नई क्लास की क्रिएशन में इंटरेस्टेड हैं. If you are interested in creation of a new class, what you have to do, you have to hit on create class button. So the interface is going to ask you that you have read and understand the license agreement for from the Google. So you're going to agree with that. Then the class, जो भी class आपने create की है उसका नाम क्या है, and this is information is some such thing which is mandatory. Every class should have some certain name. So जो भी आपकी क्लास का नाम है वो आप whatever the name of the subject which you are going to teach, depending upon that you can name your class accordingly. क्लास का नाम होना ज़रूरी है. इफ़ यू आर हैविंग मल्टीपल सेक्शंस, तो हर सेक्शन के लिए अगर आप एक सेपरेट क्लास क्रिएट करना चाहें तो अपनी क्लैरिफिकेशन के लिए आप सेक्शन ए बी सी सेक्शन 1 2 3 उनमें फर्दर सेग्रीगेशन कर सकते हैं. कोई किसी रूम के साथ, फिजिकल रूम के साथ इस क्लास को एसोसिएट करना चाहें तो वो भी मेंशन कर सकते हैं. बस बट ऑल दीज थिंग्स दीज आर ऑप्शनल. ओनली मैंडेटरी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज दैट क्लास शुड हैव सम नेम. तो क्लास का एक नाम होगा विद द इंफॉर्मेशन ऑफ क्लास नेम. व्हाट यू कैन डू, यू कैन हिट ऑन दिस क्रिएट बटन. और इतना करने से ही आपकी क्लास की जो क्रिएशन थी वो हो गई. द टूल इज़ वर्किंग ऑन क्रिएशन ऑफ द क्लास. और जैसे ही क्लास क्रिएट होती है तो ग्राफिकल इंटरफेस इज़ गोइंग टू चेंज एंड अनदर न्यू बटन इज़ गोइंग टू अपीयर इन फ्रंट ऑफ अस. तो वो क्लास क्रिएट होगी ऑनलाइन लेक्चरिंग के नाम से, एंड आई एम नाउ हैविंग ग्राफिकल इंटरफेस ऑफ दैट क्लास. If I'm going to go back into classroom.google.com, so previously I was having 3 buttons in front of me. Now I am having 4 class icons or buttons in front of me. So if I'm interested in getting an idea that what is available in this class with the name of online lecturing, so I'm going to hit on that. So this is the graphical interface of the class which I have just created in front of you. अभी मैंने आपके सामने एक क्लास क्रिएट की विद द नेम ऑफ ऑनलाइन लेक्चरिंग, और क्लास की क्रिएशन में आपने देखा कि द ओनली पीस ऑफ इंफॉर्मेशन विच आई हैव टू फर्निश वाज द नेम ऑफ द क्लास. बाकी सारी इन्फॉर्मेशन ऑप्शनल थी कि क्लास का कोई सेक्शन है, क्लास को किसी फिजिकल रूम के साथ मैं अटैच करना चाहता हूँ, सब्जेक्ट की कोई डिस्क्रिप्शन मेंशन करना चाहता हूँ तो मैं दे सकता था, बट दैट वाज ऑप्शनल.
Now in this graphical interface, if we are going to look into it, there are 4 different tabs. One with the name of stream, other one with the name of classwork, third one with the name of people, fourth one with the name of grades. So these are the 4 different tabs which are available in this class. Right now, all these 4 tabs, they are appearing blank. किसी में भी मैं जाता हूँ तो all tabs are not having any further details in them, क्योंकि मैंने जस्ट एक क्लास क्रिएट की है और अभी मैंने उसमें कोई स्टूडेंट्स ऐड नहीं किए, कोई इन्फॉर्मेशन पोस्ट नहीं की, कोई असाइनमेंट असाइन नहीं की, कोई क्विज असाइन नहीं किया, तो ऑल टैब्स राइट नाउ दे आर अपीयरिंग ब्लैंक इन फ्रंट ऑफ मी. सो दिस वाज द वेरी फर्स्ट स्टेप. इफ़ यू आर यूजिंग गूगल क्लासरूम, तो पहला स्टेप ये था कि गूगल क्लासरूम बनेगी कैसे, वर्चुअल क्लासरूम कैसे बनेगी. सो वी हैव जस्ट गॉट एन आइडिया हाउ टू क्रिएट अ क्लास की क्रिएशन के बाद वेरी नेक्स्ट स्टेप इज हाउ योर स्टूडेंट्स आर गोइंग टू हैव एन एक्सेस टू द क्लास जिसको आपने क्रिएट किया है. आपके स्टूडेंट्स आपकी क्लास को किस तरह से ज्वाइन कर पाएंगे. ये क्लास आपने क्रिएट कर ली, हाउ योर स्टूडेंट्स वुड बी एबल टू ज्वाइन दिस क्लास. सो देर आर 2 ऑप्शंस फॉर द स्टूडेंट्स to join this class. One option is if you are having an eye on this graphical interface, over here we are having this information with the name of class code. आपने क्लास क्रिएट की, गूगल के नेटवर्क ने बाय इटसेल्फ एक कोड क्रिएट कर दिया, एक पासवर्ड क्रिएट कर दिया. सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन शेयर दिस क्लास कोड विद दोज इंडिविजुअल्स जो कि इस क्लास को के स्टूडेंट्स हैं. तो योर स्टूडेंट्स कैन गो and visit classroom.google.com, and what they are going to do, they are going to hit on this plus button and they are going to make use of this option with the name join a class. तो जब वो join a class पे click करेंगे तो they would be asked to feed in this information of class code. So what faculty has to do, faculty has to provide students with the information of class code. तो क्लास कोड हमने देखा कि जो भी क्लास हमने क्रिएट की थी उसका एक क्लास कोड हमें उसी क्लास के ग्राफिकल इंटरफेस में मिल रहा था. तो वन ऑप्शन विच इज़ अवेलेबल फॉर द एडिशन ऑफ द स्टूडेंट्स इज़ कि फैकल्टी मेंबर स्टूडेंट्स को ये पासवर्ड, ये क्लास कोड की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दें. स्टूडेंट्स ये क्लास कोड गूगल क्लासरूम में फीड इन करके क्लास को ज्वाइन कर पाएंगे. दिस इज़ वन ऑफ द वेज. एन अल्टरनेटिव इज़ के you can go into the people tab. People tab में there are 2 options, one with the name of teacher, other one with the identity as a students. Teachers में चूँकि क्लास मैंने क्रिएट की थी तो right now I am appearing as a teacher. So if there is a subject which is being taught by multiple teachers, एक सब्जेक्ट को एक से ज़्यादा टीचर्स अगर टीच कर रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, जो आपके साथ को टीचर्स हैं उनको भी आप इन्वाइट कर सकते हैं. So if you are having some co-teachers with yourself जो कि इसी सब्जेक्ट को आपके साथ टीच कर रहे हैं, इसी मॉड्यूल को, तो आप उनको इनवाइट कर सकते हैं, उनको ऐड कर सकते हैं एज ए co-teachers, तो ऐड हो जाएंगे. सिमिलरली इफ़ यू आर ट्राइंग टू ऐड स्टूडेंट्स बाय योरसेल्फ, तो आप स्टूडेंट्स वाले टैब में जाएंगे एंड यू आर गोइंग टू हिट ऑन दिस इनवाइट स्टूडेंट्स बटन. And what you have to do, you have to invite the students to join this class. So in this case, you need the information of email addresses of all those students. अगर आपके पास स्टूडेंट्स के ईमेल एड्रेसेस हैं और उन ईमेल एड्रेसेस पे आप एक इनविटेशन का लिंक सेंड करके स्टूडेंट्स को इस क्लास को ज्वाइन करवाना चाहते हैं, तो दिस इज़ द सेकंड पॉसिबिलिटी कि आप इधर आके वो ईमेल एड्रेस फर्निश करें, और जब ईमेल एड्रेस आपने इंटर कर लिया है तो देन नीचे जाके इनवाइट पे क्लिक करें, तो दोज स्टूडेंट्स दे आर गोइंग टू गेट एन ईमेल in their account and that email would be containing the invitation link to join that particular class. So this is how students are going to have access to your class, either through class code or you are going to add them individually via feeding in the Google Classroom with the information of their email addresses. So depending upon your own convenience, जो भी आपको method easy लगे, convenient लगे, either you are going to supply students the information of this class code, or you are going to invite them through the people tab by making use of their email addresses. From their email addresses they would be getting an invitation link, and by following that link they would be able to join the class. This is how the students would be having access to the class.
So up till now, we have just learned two things: how to create a class and how we can add students or our co-teachers to that class. Now, these, as I said before, there are these four tabs. We are going to talk about each of these tabs in a little bit more detail. The very first tab, which is now working in front of me, is with the name of stream. तो stream वाले tab में अगर मैं जाता हूँ, so right now this is appearing as a blank in front of me. So, but this is the place where the instructor or the faculty member can. This is the place which the faculty member can use in order to share any information with the students. स्टूडेंट्स के साथ कोई भी इंफॉर्मेशन, वो स्टूडेंट्स जो इस क्लास में रजिस्टर्ड हैं, उन स्टूडेंट्स के साथ कोई भी इंफॉर्मेशन आप एक्सचेंज करना चाहते हैं, तो दैट इंफॉर्मेशन वुड बी एक्सचेंज एट दिस प्लेस. लेट्स से कि मैंने ये जो क्लास क्रिएट की है, अभी इसमें मैंने कोई स्टूडेंट्स ऐड नहीं किए हुए, ये दिस इज़ जस्ट फॉर योर डेमोस्ट्रेशन पर्पस ओनली. लेकिन डेमोस्ट्रेशन में अगर मैं ये कहूँ कि मैं स्टूडेंट्स को ये इन्फॉर्म करना चाह रहा हूँ कि देयर वुड बी अ क्विज in the next lecture. So what I am going to do, I am going to post that information over here. Whatever information you are basically interested in exchanging with the students, you can post it over here. अगर मैं स्टूडेंट्स को ये इन्फॉर्म करना चाह रहा हूँ कि उनके अगले सेशन में एक क्विज़ मैं कंडक्ट करना चाह रहा हूँ, वो 10 मिनट का क्विज़ है, उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं उनके लिए, और मैं चाहता हूँ कि सारे स्टूडेंट्स तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए, तो मैंने जस्ट एक मैसेज टाइप इन कर दिया कि देयर वुड बी अ 10 minutes quiz containing multiple choice questions at the start of the next lecture. और एडिशनली इसमें फीचर्स ये हैं कि अगर आप कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे हैं जिसमें कोई अटैचमेंट्स हैं आपकी, वो अटैचमेंट्स आपकी गूगल ड्राइव में अवेलेबल हैं, या आप अपने कंप्यूटर से कोई फाइल अटैच करना चाह रहे हैं, कोई वर्ड की फ़ाइल है, कोई पीडीएफ की फ़ाइल है, कोई पीपीटी फाइल है, कोई बुक है, कोई वेब लिंक आप स्टूडेंट्स को रेफ़र करना चाह रहे हैं, कोई यूट्यूब की वीडियो है जिसमें कुछ ऐसा पीस कंटेंट है जो स्टूडेंट्स के लिए जो उनके लिए लर्निंग की एक्सरसाइज उसको इम्प्रूव कर सकता है, उसको अपन पोस्ट का हिस्सा बनाना चाहते हैं, तो यू कैन डू दैट. गूगल ड्राइव से आप कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी फाइल, कोई भी कंटेंट अटैच कर सकते हैं. You can attach any content from your own computer. You are just going to hit on the upload button, और फिर आप अपनी कंप्यूटर पर सिलेक्ट करने जा रहे हैं कि आपको इन्फॉर्मेशन अपने कंप्यूटर में डी ड्राइव में, डाउनलोड में, कहाँ पे आपके पास वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, ड्राइव से वो इन्फॉर्मेशन आपने लेनी है, उसको आप अपनी पोस्ट का हिस्सा बना सकते हैं. कोई वेब लिंक स्टूडेंट्स को रेफर करना चाहते हैं वो अटैच कर सकते हैं. यूट्यूब की कोई वीडियो रेफर करना चाहते हैं तो उसका लिंक अपनी पोस्ट का हिस्सा बना सकते हैं. वंस यू हैव रिटन ऑल द पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो भी आप स्टूडेंट के साथ एक्सचेंज करना चाह रहे थे, और उसके साथ आपने अगर कोई अटैचमेंट अटैच करनी थी उसको भी आपने अगर अपनी पोस्ट में ऐड कर लिया, तो देन व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यू आर गोइंग टू हिट ऑन दिस पोस्ट बटन. अगर आप ये चाह रहे हैं कि इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स तक पहुंच जाए, आपने टाइप इन कर लिया, उसमें जो भी अटैचमेंट्स आपने अटैच करनी थी वो अटैच कर ली, तो आप फिर पोस्ट के बटन पे क्लिक करेंगे. और पोस्ट से पहले भी अगर आप देखें तो ऑन द टॉप यू आर हैविंग दीज टू ड्रॉप डाउन बटन्स. मैंने ये इन्फॉर्मेशन जिस क्लास में पोस्ट की है दैट इज़ विद द नेम ऑफ ऑनलाइन लेक्चरिंग, और इधर ड्रॉप डाउन मेन्यू में मेरे पास इन्फॉर्मेशन आ रही है उन सारी क्लासेस की जो मेरे गूगल अकाउंट में एग्जिस्ट कर रही हैं. अगर मैं ये इन्फॉर्मेशन इस क्लास के अलावा किसी और क्लास में भी पोस्ट करना चाह रहा हूँ तो आई एम जस्ट गोइंग टू हिट ऑन दिस चेक मार्क्स. मैं अगर ये चाह रहा हूँ कि इस इन्फॉर्मेशन सारी क्लासेस तक पास ऑन हो जाए तो जस्ट मैं उनको सेलेक्ट कर लिया मैंने. और अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ इसी क्लास तक शेयर हो, बाकी क्लासेस में ना जाए, तो बाकी को मैंने अनचेक कर दिया. बाय डिफ़ॉल्ट बाकी सारे अनचेक किए थे. सो दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू पोस्ट एनी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन. और इसमें भी पोस्ट में भी जब जाएँ तो आपके पास ये ऑप्शन आ रही है कि सिंपली पोस्ट कर दें, अभी पोस्ट कर दें, या इसको शेड्यूल करना चाहते हैं कि ये पोस्ट अभी पोस्ट ना हो, कल पोस्ट हो, सो जिसको कल विजिबल हो, डे आफ्टर टुमारो विजिबल हो, मंडे को विजिबल हो, या आप सिर्फ ये चाह रहे हैं कि जो भी आपने इन्फॉर्मेशन नोट डाउन कर ली है वो आपके पास एज अ ड्राफ्ट सेव हो जाए, और लेटर ऑन आप खुद डिसाइड करें कि आपने इस इन्फॉर्मेशन को कब अपलोड करना है.
तो डिपेंडिंग अपॉन वट एवर द केस इज़ आप चूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग। अगर मैं चाह रहा हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन अभी स्टूडेंट्स को पहुँच जाए तो आई एम जस्ट गोइंग टू हिट ऑन दिस पोस्ट बटन और ये मैसेज मेरा पोस्ट हो गया। वंस दिस मैसेज हैज़ बिन पोस्टेड तो इसका मतलब ये है कि ये इन्फॉर्मेशन आपकी क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स आपकी क्लास की एक्सेस जिन स्टूडेंट्स के पास थी, दिस इन्फॉर्मेशन विल पास ऑन टू ऑल दोज स्टूडेंट्स। तो ये इन्फॉर्मेशन उन तक पहुँच गई। अब ये है कि व्हाट स्टूडेंट्स कैन डू, स्टूडेंट्स कैन कमेंट ऑन योर पोस्ट एज वेल। तो अगर स्टूडेंट्स चाहें तो आपकी पोस्ट पे कुछ अपनी कमेंट्री करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। और अगर आप ये चाहते हैं, आपकी प्रेफरेंस ये है कि स्टूडेंट्स की कमेंट्री आपकी पोस्ट पे ना आए, तो फिर आपको सेटिंग्स में जाके स्टूडेंट्स के कमेंट्स को टर्न ऑफ करना पड़ेगा। अदरवाइज बाय डिफ़ॉल्ट जो अकाउंट है उसमें स्टूडेंट्स अपनी कमेंट्स आपकी पोस्ट पे छोड़ सकते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन योर ओन पर्सनल प्रेफरेंस आप कुछ स्टूडेंट्स की कमेंट्री जो है उसको टर्न ऑफ भी कर सकते हैं। So this is how information exchange would be happening in this visual class। की क्लास आपने क्रिएट की, स्टूडेंट्स ऐड कर लिए, कोई मैसेज उन तक पहुंचाना था कि अगला लेक्चर 10 मिनट लेट शुरू होगा, अगला लेक्चर रीशेड्यूल कर रहे हैं, आप मंडे की बजाय ट्यूसडे को होगा, कोई क्विज कंडक्ट करने जा रहे हैं, कोई इनकी असाइनमेंट ड्यू हो रही है उसके मुताबिक उनको कुछ इन्फॉर्म करना चाह रहे हैं। सो वट एवर इन्फॉर्मेशन यू वांट टू एक्सचेंज, that exchange of information would be happening in the very first tab with the name of stream. Now we are going to move into the second tab with the name of class work. अब क्लास वर्क में मैं गया हूँ तो अभी तक क्योंकि मैंने इस क्लास में कोई काम नहीं किया हुआ था तो दिस इज अपीयरिंग एज अ ब्लैंक और विद ब्लैंक एंड विद दिस क्रिएट बटन। तो क्रिएट बटन पे मैं जाके अगर क्लिक करता हूँ तो आई एम गोइंग टू गेट दीज ऑप्शंस। तो गूगल क्लासरूम का प्लेटफॉर्म मुझे ये ऑप्शंस दे रहा है कि आइदर आई एम इंटरेस्टेड इन क्रिएशन ऑफ सम असाइनमेंट, मे बी आई एम इंटरेस्टेड इन क्रिएशन ऑफ ए क्विज असाइनमेंट, मैं कोई क्वेश्चन लोड करना चाह रहा हूँ, मैं कोई मटेरियल स्टूडेंट के साथ एक्सचेंज करना चाह रहा हूँ। So this is basic class work tab is basically the tab where we are going to exchange any class related material with the students। क्लास रिलेटेड मटेरियल का मतलब ये है कि लेक्चर नोट्स हैं, मे बी आपके पास कोई बुक है जो आप स्टूडेंट के साथ एक्सचेंज करना चाह रहे हैं, कोई आपके अपने नोट्स हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फॉर्म में, नोटपैड की फॉर्म में, कोई पीडीएफ डॉक्यूमेंट है, कोई पावर पॉइंट की आपकी प्रेजेंटेशन है, वट एवर इज़ द केस, कोई एक्सेल की फाइल है, कोई ड्राइंग है। तो डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट कि किस तरह का कोर्स है आपका और उसमें किस तरह के मटेरियल आपके पास है और आप चाह रहे हैं कि स्टूडेंट्स को उन मटेरियल तक की एक्सेस दी जाए, तो उन रिसोर्सेज को एक्सचेंज करने के लिए, शेयर करने के लिए आप ये टैब यूज़ करेंगे, सेकंड टैब विद द नेम ऑफ क्लास वर्क। और अगर आप कोर्स मटेरियल एक्सचेंज करना चाह रहे हैं तो आप मटेरियल पे आके क्लिक करेंगे और आप बता देंगे कि आप क्या एक्सचेंज कर रहे हैं स्टूडेंट के साथ, क्या टाइटल है उसका, क्या कुछ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है, और उसके लिए आपके पास आप गूगल ड्राइव से वो अटैच करना चाह रहे हैं, अपने कंप्यूटर से अटैच करना चाह रहे हैं, कोई वेब लिंक है, कोई यूट्यूब वीडियो है, या गूगल पे प्लेटफॉर्म यूज़ करते हुए कोई गूगल डॉक है, स्लाइड्स हैं, शीट्स हैं, ड्राइंग्स हैं, फॉर्म है, कुछ भी है, जो भी मटेरियल आप शेयर कर रहे हैं वो किस पर्टिकुलर टॉपिक को कवर कर रहा है आपके कोर्स में, किस क्लास में आप ये मटेरियल शेयर करना चाह रहे हैं, अभी पोस्ट करना है, बाद में पोस्ट करना चाहेंगे, अभी सिर्फ ड्राफ्ट के तौर पे अपने पास सेव करना चाह रहे हैं, ड्राफ्ट को कैंसिल करना चाह रहे हैं, ये सारी ऑप्शंस आपको मिल रही हैं। सो दिस इज़ हाउ कि आप वो रिसोर्स मटेरियल जो है स्टूडेंट के साथ वो कैसे शेयर करेंगे। क्रिएट के टाइम में जाएंगे, मटेरियल की ऑप्शन को यूज़ करेंगे और आप अपने कोर्स का मटेरियल, रिसोर्स मटेरियल अपने स्टूडेंट के साथ शेयर कर पाएंगे। नाउ अगर आपने कोई असाइनमेंट कंडक्ट करनी है, कोई क्विज कंडक्ट करना है स्टूडेंट्स का, तो दैट वुड बी कंडक्टेड इन द सेम टैब ऑफ क्लास वर्क। मैंने कोई असाइनमेंट कंडक्ट करनी है तो मैं क्या करूँगा, क्रिएट के बटन पे क्लिक करूँगा। इफ़ आई एम इंटरेस्टेड इन क्रिएशन ऑफ एन असाइनमेंट तो मैं असाइनमेंट पे क्लिक करूँगा। दिस इंटरफेस इज गोइंग टू अपीयर इन फ्रंट ऑफ मी और इस इंटरफेस में मुझे पूछा जा रहा है कि असाइनमेंट का टाइटल क्या है, असाइनमेंट के लिए कोई इंस्ट्रक्शंस हैं तो वो मैं प्रोवाइड करूँगा। लिखा हुआ है कि ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है, टाइटल की इन्फॉर्मेशन देंगे आप। असाइनमेंट्स कितने पॉइंट कैरी कर रही है, इसकी कोई ड्यू डेट है, ड्यू डेट और टाइम, ये असाइनमेंट जिस टॉपिक को कवर कर रही है वो मेंशन करना हो तो वो कर सकते हैं। और एडिशनली आखिर में लिखा हुआ है रूब्रिक्स की जो असाइनमेंट्स आपकी है, जो भी असाइनमेंट आपने डिज़ाइन की है, इसकी ग्रेडिंग कैसे होगी, इसकी ग्रेडिंग के लिए क्या यार्ड स्टिक्स है आपके पास, स्टूडेंट्स ने क्या किया होगा तो आप उनको मिनिमम मार्क्स देंगे, उनको एवरेज मार्क्स कब मिलेंगे, उनको मैक्सिमम मार्क्स कब मिलेंगे, वो कौन से 4, 5, 6, 7 पैरामीटर्स हैं जिनकी असेसमेंट आप करना चाह रहे हैं इस असाइनमेंट में, तो वो इन्फॉर्मेशन आप रूब्रिक्स टेबल में दे सकते हैं।
और अगर आपने रुब्रिक्स टेबल डिज़ाइन किया है तो आप असाइनमेंट की जब कंप्यूटर की स्क्रीन पे बैठ के ग्रेडिंग करेंगे तो जस्ट ड्रॉप डाउन मेन्यू में से आप वो नंबर सेलेक्ट कर रहे होंगे कि आपने 3 out of 10 देनी है, 5 out of 10 देनी है, 7 out of 10 देनी है, 10 out of 10 देनी है. सो दिस वुड बी द ग्राफिकल इंटरफेस जो आप यूज़ करेंगे इन ऑर्डर टू पोस्ट एनी असाइनमेंट. तो अगर आपने असाइनमेंट क्रिएट करनी है ये टैब यूज़ करेंगे, असाइनमेंट क्रिएट कर लेंगे. जब आप असाइनमेंट क्रिएट करेंगे पोस्ट कर देंगे स्टूडेंट्स को उसी वक्त वो नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि टीचर ने असाइनमेंट असाइन कर दी है. जब टीचर ने असाइनमेंट असाइन कर दी है तो व्हाट स्टूडेंट्स कैन डू, फिर स्टूडेंट्स की वर्किंग उस असाइनमेंट पे शुरू होगी और दे आर गोइंग टू गेट दिस आइडिया. ये सारी की सारी वो चीज़ें जो हम डिस्कस कर चुके हैं. सो आई एम जस्ट गोइंग टू क्विकली गो थ्रू इट. एंड वी वर डिस्कसिंग अबाउट असाइनमेंट्स. तो असाइनमेंट अगर आपने क्लिक कर ली है, डिज़ाइन कर ली है तो और पोस्ट कर दिए स्टूडेंट्स को, तो स्टूडेंट्स आर गोइंग टू गेट द इन्फॉर्मेशन क्या टीचर ने एक असाइनमेंट उनको असाइन कर दी है और टीचर के पास ये उसके अकाउंट में इंफॉर्मेशन आना शुरू हो जाएगी कि कितने स्टूडेंट्स ने असाइनमेंट सबमिट कर दी है, कितने स्टूडेंट्स की तरफ से अभी सबमिशन पेंडिंग है. तो व्हेन दिस स्नैपशॉट वाज टेकन, इसी तरह से एक रैंडम क्लास मैंने क्रिएट की थी. उस क्लास में देयर वर 25 स्टूडेंट्स और एक असाइनमेंट पोस्ट की गई थी. जब ये स्नैपशॉट लिया गया तो एट दैट टाइम नो वन हैज़ सबमिटेड द असाइनमेंट. तो ये असाइनमेंट अपीयर हो रही थी स्टूडेंट्स के पास कि दिस वाज असाइनमेंट और विच वाज ड्यू ऑन 24 फरवरी. और जब ये स्नैपशॉट लिया गया उस वक्त किसी स्टूडेंट्स ने वो असाइनमेंट सबमिट नहीं करवाई थी. तो जैसे ही वो स्टूडेंट्स असाइनमेंट सबमिट करना शुरू कर देते हैं तो ये नंबर चेंज होना शुरू हो जाएंगे आपके पास कि कितने स्टूडेंट्स ने सबमिट करवा दिए, कितने स्टूडेंट्स की सबमिशन अभी रहती है. और फिर जब टीचर के अकाउंट में वो असाइनमेंट्स आ गए हैं तो टीचर ने अगर रूब्रिक टेबल अपना बनाया हुआ है तो टीचर उसकी अपनी स्क्रीन पे बैठ के ग्रेडिंग कर सकते हैं ऑटोमेटिकली और स्टूडेंट्स को वो असाइनमेंट्स रिटर्न कर सकते हैं. और उस असाइनमेंट पे अगर कोई फीडबैक देना हो स्टूडेंट्स को कि आपकी इस पार्ट में वर्किंग ठीक नहीं थी, ये पैरामीटर्स आपने जो है उनको कंसीडर नहीं किया, तो वो फीडबैक भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं. तो आपके पास एक टेक्स्ट बॉक्स होगा उसमें आप कुछ भी इन्फॉर्मेशन लिखना चाहें एज अ फीडबैक टू द स्टूडेंट्स तो वो भी लिख पाएंगे. सो दिस इज़ हाउ कि असाइनमेंट्स पोस्ट कैसे होंगी, ग्रेड कैसे होंगी, उन पर अगर कोई फीडबैक आपने देना तो वो कैसे देंगे. सो ऑल दीज aspects, all these features which are available in Google Classroom. Now असाइनमेंट हमने देख लिया कि असाइनमेंट कैसे फ्लोट होगी. सिमिलरली अगर आपने कोई क्विज कंडक्ट करना है तो यू आर गोइंग टू हिट ऑन द क्विज असाइनमेंट और उसको अगर आपने गूगल फॉर्म से डिज़ाइन करना है तो वो गूगल फॉर्म आपके पास नीचे ब्लैंक में अपीयर हो गया, उससे आप वो क्विज अपने डिज़ाइन कर सकते हैं कि उसमें कितने क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है, क्या क्या ऑप्शन हैं, उसके अंदर सारा वो सिलसिला कि आप अपना पूरे का पूरा क्विज डिज़ाइन कर सकते हैं, उसके आंसर की डिज़ाइन कर सकते हैं, एक एक क्वेश्चन के मार्क्स जो है वो डिसाइड कर सकते हैं. तो वो सारी ऑप्शंस आपके पास आ रही हैं कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, चेक बॉक्स आपने कोई डिज़ाइन करने हैं, रेक्टर स्केल पे कोलिनियर स्केल है 1 2 3 4 5 वाला, किस तरह का क्विज है. तो उसमें जो क्वेश्चन हैं वो किस तरह के हैं, या आप चाह रहे हैं कि कोई भी जो क्वेश्चन आपने दिया है तो उसका जो है मल्टीपल, उसके लिए मल्टीपल चॉइसेस नहीं है, शॉर्ट आंसर देना है स्टूडेंट ने, तो आप अकॉर्डिंगली वो ऑप्शन चूज़ करेंगे. नीचे आपके पास आंसर की ऑप्शन आ रही है, उस पर क्लिक करेंगे जो भी ऑप्शन है आपके पास और कितने पॉइंट्स एक इंडिविजुअल क्वेश्चन कैरी कर रहे हैं तो वो सारी चीज़ें आप फिक्स कर पाएंगे. सो दिस इज़ हाउ कि आप क्विज़ कैसे डिज़ाइन कर रहे होंगे अपना. सो पहले टैब में हम इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे होंगे, दूसरे टैब में जो हमारे रिसोर्स मटेरियल हैं उनकी एक्सचेंज हो रही होगी स्टूडेंट के साथ. इसी टाइम में हम अपनी असाइनमेंट डिज़ाइन करेंगे, अपनी क्विजेज डिज़ाइन करेंगे, उनकी ग्रेडिंग होगी. थर्ड टैब में वी वुड बी हैविंग दिस इंफॉर्मेशन के हु आर द इंडिविजुअल्स हु हैव बीन इन्वॉल्व इन दिस पर्टिकुलर कोर्स. जो भी ये क्लास आपने क्रिएट की है उसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं, किन का रोल टीचर का है, किन का रोल स्टूडेंट्स का है. पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर मल्टीपल टीचर्स हैं तो इसी टीचर्स टैब में हमने ऐड करेंगे, इन्वाइट कर सकते हैं एक सब्जेक्ट अगर एक से ज़्यादा टीचर टीच कर रहे हैं तो. और स्टूडेंट्स जिनको आपने क्लास कोड के थ्रू या ईमेल नोटिफिकेशन के थ्रू इनविटेशन लिंक भेजा हुआ है उनकी इन्फॉर्मेशन आपके पास स्टूडेंट्स की टैब में अपीयर हो रही होगी. अगर आपने कोई क्विज़ अपलोड किए हुए हैं, असाइनमेंट्स अपलोड किए हुए हैं, उनसे स्टूडेंट्स की जो ग्रेडिंग हो रही है वो बाय डिफ़ॉल्ट आपकी ग्रेडिंग वाले टैब में, ग्रेड्स वाले टैब में अपीयर होगी. With this, what we have done, we have seen this thing, what is the graphical interface looks like, what are the different tabs, what are the major piece of information which is available in those tabs,
और फिर ये कि ये सारी की सारी चीज़ें जो ये पेपरलेस इन्वायरमेंट है, जब हम गूगल क्लासरूम में काम कर रहे हैं, एक वर्चुअल इंटरफेस हमारे पास बन गया क्लास का, और क्लास के अंदर जो भी हम रिसोर्स एक्सचेंज कर रहे हैं स्टूडेंट्स के साथ, कोई असाइनमेंट जो हम अपलोड कर रहे हैं उसकी जो ग्रेडिंग हो रही है, जो क्विज हम अपलोड कर रहे हैं उसकी जो ग्रेडिंग हो रही है, ये सारी चीज़ें आपकी गूगल ड्राइव में सेव होती जा रही हैं, ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइज होती चली जा रही हैं। अगर आप अपने गूगल ड्राइव में जाते हैं तो गूगल ड्राइव में यू आर गोइंग टू गेट दिस इंफॉर्मेशन। आपके पास एक फोल्डर है विद द नेम ऑफ क्लासरूम। तो क्लासरूम में जितनी भी आपने क्लासेस क्रिएट की हैं वो सारी की सारी अपीयर हो रही हैं। ये क्लास मैंने आज क्रिएट की थी विद द नेम ऑफ ऑनलाइन लेक्चरिंग, तो उसका एक टैब मेरे पास बन गया है। एक मैंने क्विज कंडक्ट अभी आपके एग्जांपल के लिए आपके सामने ओपन किया था, तो वो ब्लैंक पेज उसी तरह से अपीयर हो रहा है। इसी तरह मैं कोई रिसोर्स मटेरियल स्टूडेंट्स से शेयर करूँगा, कोई असाइनमेंट पोस्ट करूँगा, कोई फर्दर क्विज कंडक्ट करूँगा, तो वो सारी चीज़ें मेरे पास ऑटोमेटिकली इधर गूगल ड्राइव में ऑटोमेटिकली सेव होती चली जा रही हैं। मुझे कोई पेपर कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, कोई रिकॉर्ड खुद से मैनुअली सेव करने की ज़रूरत नहीं है। तो सारी की सारी चीज़ें आपकी गूगल ड्राइव के साथ लिंक्ड है और उसमें सेव होती चली जा रही हैं, ऑर्गेनाइज होती चली जा रही हैं ऑटोमेटिकली। द ओनली थिंग इज़ कि जो फ्री अकाउंट है उसमें आपके पास स्पेस की लिमिटेशन है। आपको पता है कि जीमेल पे आपके पास जो अकाउंट अवेलेबल है, दैट अकाउंट इज़ हैविंग स्टोरेज लिमिट ऑफ 15 GB ओनली। उसकी स्टोरेज लिमिट जो है वो 15 GB है। और अगर उससे ज़्यादा स्पेस अगर आपको चाहिए तो फिर आपको कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन लेनी है। और ये सारी के सारे फीचर्स जो भी तक हमने डिस्कस किए थे, दीज फीचर्स आर अवेलेबल इन द फ्री वर्जन ऑफ गूगल क्लासरूम। इसमें हमने देखा ये कि क्लास क्रिएट कैसे होगी, स्टूडेंट्स कैसे ऐड होंगे, असाइनमेंट्स कैसे पोस्ट होंगी, क्विजेस कैसे पोस्ट होंगे, उनकी ग्रेडिंग कैसे होगी, और ये सारी की सारी चीज़ें जो उनकी इंटीग्रेशन गूगल ड्राइव के साथ। अब हम आते हैं इस चीज़ पे कि लेक्चर हम कैसे कंडक्ट करेंगे। लेक्चर जब हमने डिलीवर करना है इन द फॉर्म ऑफ ऑडियो और अ वीडियो लेक्चर, तो जब लेक्चर डिलीवर करना है तो वो कैसे करेंगे। तो अब इसमें थोड़ा सा इशू जो है वो ये है कि आपका जो गूगल क्लासरूम का जो फ्री वर्जन है, इसमें आपके पास गूगल मीट की ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट एग्जिस्ट नहीं कर रही। इसमें मैं अगर इस क्लासरूम में गया हूँ तो मेरे पास क्लास वर्क में अगर मैं गया हूँ तो मेरे पास ड्राइव फोल्डर की इंफॉर्मेशन आ रही है, गूगल कैलेंडर आ रहा है, लेकिन गूगल मीट का बटन नज़र नहीं आ रहा मुझे। गूगल मीट इज़ बेसिकली टूल विच गूगल ऑफर्स फॉर अरेंजिंग अ रिमोट मीटिंग। तो गूगल मीट गूगल क्लासरूम के फ्री वर्जन के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। तो लेक्चर कंडक्ट करने के लिए आपको क्या करना है कि गूगल क्लासरूम के अलावा गूगल का एक दूसरा जो टूल है विद द नेम ऑफ गूगल मीट, तो वो आपको एक्सप्लोर करना है। meet.google.com पे जाना है, और ये जो टूल है, दिस टूल इज़ समथिंग जो कि आपको यूज़ करना पड़ेगा फॉर द पर्पस ऑफ डिलीवरी ऑफ योर लेक्चर। तो इसमें आपके पास इंफॉर्मेशन आ रही है कि आपको मीटिंग जो है वो अभी उसका लिंक बनाना चाह रहे हैं और स्टूडेंट्स से शेयर करना चाह रहे हैं, कोई मीटिंग अभी प्लान करना चाह रहे हैं, अभी कोई मीटिंग स्टार्ट करना चाह रहे हैं। तो अकॉर्डिंगली जो भी आपकी प्रेफरेंस है आप वो चूज़ करेंगे। आप व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू गो ऑन टू meet.google.com। अगर आपने आपकी कोई मीटिंग कल है, उसका कोई लिंक क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो आप क्रिएट ए मीटिंग फॉर लेटर यूजेज उस पर क्लिक करेंगे। मीटिंग को अगर आप फ़ौरन से अभी से स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो उस पर क्लिक करेंगे। इफ़ यू आर हैविंग ए क्लास टुमारो और उस क्लास के लिए आप कोई लिंक एक्सचेंज शेयर करना चाह रहे हैं इन्फॉर्मेशन, तो आप ने एक मीटिंग का एक इनविटेशन लिंक जो है वो बना लिया, आपके पास लिंक आ गया। ये लिंक आप अपने स्टूडेंट के साथ शेयर कर लें और उनको क्लास टाइम मीटिंग का टाइम बताते हैं, इस टाइम पे आपने मीटिंग स्टार्ट करनी है। तो इस लिंक को फॉलो करके वो आपकी मीटिंग में आपको ज्वाइन कर पाएंगे। अगर आपने कोई लेक्चर अभी से फ़ौरन से स्टार्ट करना है तो स्टार्ट एंड इंस्टेंट मीटिंग पे आप जाएंगे। तो जब इंस्टेंट मीटिंग को आपने स्टार्ट किया है तो इंस्टेंट मीटिंग को जब आपने स्टार्ट किया तो आपकी मीटिंग स्टार्ट होगी आपके सामने। ये मीटिंग अभी स्टार्ट हुई, इसमें यू आर द ओनली वन हु हैज़ स्टार्टेड दिस मीटिंग, बाकी अभी कोई ऐड नहीं है। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास ये आ रहा है जी कि आप ऐड कर सकते हैं बाकी लोगों को। अगर आपके पास उनके ईमेल एड्रेसेस हैं, स्टूडेंट्स के ईमेल एड्रेसेस हैं, तो वो फीड इन करें और उनके ईमेल एड्रेसेस से आप उनको ऐड कर पाएंगे। या ईमेल एड्रेसेस नहीं है तो ये इनविटेशन लिंक जो आपके पास नीचे आ रहा है इसको कॉपी कर लें, इस पर जस्ट क्लिक करें, ये इनविटेशन लिंक कॉपी हो गया। अपने स्टूडेंट्स तक ये इन्फॉर्मेशन बाय एनी मीन्स सर्कुलेट करें कि इस लिंक को फॉलो करें और इस लिंक को क्लिक करके वो आपकी मीटिंग को ज्वाइन कर पाएंगे। और आपने मीटिंग को स्टार्ट कर लिया, स्टूडेंट्स ने आपको मीटिंग में ज्वाइन कर लिया, तो अब आपके पास नीचे ये कंट्रोल्स हैं सारे।
कि आप अपने माइक्रोफोन कंट्रोल कर सकते हैं, आप अपने कैमरा कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी स्क्रीन पे कोई मटेरियल आपने स्टूडेंट के साथ एक्सचेंज करना है, आप चाह रहे हैं कि आपकी स्क्रीन जो है सारी की सारी जो भी ऑन स्क्रीन एक्टिविटीज़ हैं स्टूडेंट्स तक जा पाएँ, तो वो आप ये आइकन यूज़ करेंगे। फिर आपके पास वो चैटिंग की ऑप्शंस आ रही हैं कि स्टूडेंट्स अगर कोई मैसेज आप तक पोस्ट करना चाह रहे हैं तो वो चैट बॉक्स में जाके पोस्ट कर सकते हैं। पार्टिसिपेंट्स की कोई डिटेल अगर आपको चाहिए तो वो यहाँ पे आपको मिलेगी, और यहाँ पे आपको डिफरेंट अदर कंट्रोल्स जो हैं वो मिल रहे हैं कि पार्टिसिपेंट सारे के सारे उनका माइक आप ऑन करना चाहते हैं, ऑफ करना चाहते हैं, किसी और को ऐड करना चाहते हैं, स्किप करना चाहते हैं, जो आपके पार्टिसिपेंट्स हैं उनको प्रेजेंटेशन की राइट्स देना चाहते हैं, नहीं देना चाहते, तो ऑल दीज थिंग्स आर देयर। सो इस तरह से गूगल मीट पे आप को मीटिंग अपनी शेड्यूल करके या इंस्टेंट मीटिंग के ज़रिए ऑप्शन को यूज़ करके आप अपना लेक्चर जो है उसको डिलीवर कर सकते हैं। लेक्चर डिलीवरी को हमने देख लिया। अब इसमें यह है कि जो फ्री वर्जन है उसमें फर्दर लिमिटेशन ये है कि आप का फ्री वर्जन जो है गूगल मीट का, वो आपको आपकी लेक्चर की रिकॉर्डिंग प्रोवाइड नहीं करता। तो लेक्चर रिकॉर्ड करने के लिए आपको अलहदा से कुछ डिफरेंट टूल्स और हैं, उनको यूज़ करना पड़ता है। एक थर्ड एप्लीकेशन आपको यूज़ करनी पड़ती है। तो काफ़ी सारे आजकल इस तरह के टूल आपको मिल जाते हैं जो आपके ब्राउज़र के अंदर रहते हुए काम करते हैं और आपको आपकी डेस्कटॉप की एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड करके दे देते हैं। तो एक आपके पास जो टूल है इस तरह का जो आपकी डेस्कटॉप की एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड करके आपको दे देता है, उसको हम कहते हैं स्क्रीन कास्टिफाई। तो स्क्रीन कास्टिफाई है एक एड ऑन, जिस तरह हम एड ब्लॉकर्स यूज़ करते हैं अपने वेब ब्राउज़र्स के अंदर, उसी तरह से आप एड इन है एक विद द नेम ऑफ स्क्रीन कास्टिफाई, उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। देयर इज एन एडिशनल वन विद द नेम ऑफ लूम, आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। आप उस और इसके अलावा काफ़ी सारे और टूल्स भी अवेलेबल हैं, काफ़ी सारे और एड ऑन्स भी अवेलेबल हैं, जिनको यूज़ करते हुए आप क्या कर सकते हैं कि अपनी जो मीटिंग की रिकॉर्डिंग है उसको प्लान कर सकते हैं। तो स्क्रीन कास्टिफाई यूज़ कर लें, लूम यूज़ कर लें, कोई भी दूसरा एड ऑन यूज़ कर लें। दीज आर द थिंग्स विच वुड बी रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू रिकॉर्ड योर डेस्कटॉप एक्टिविटीज़। अगर आप अपने लेक्चर को रिकॉर्ड करना चाहते हैं जिसको लेटर ऑन आपने अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना है, या आप अपने लेक्चर को रिकॉर्ड करना चाहते हैं सो दैट कि आप उसे अपने प्रोग्राम की जो एक्रेडिटेशन बॉडी ने लेटर ऑन आपके प्रोग्राम के एक्रेडिटेशन के लिए आपके डिपार्टमेंट को अगर विजिट करना है और उनके सामने आपको एज अ पीस ऑफ एविडेंस ये प्लेस करना है कि रिमोट लेक्चरिंग आपकी कैसे हुई थी, तो उसके लिए आपको अपने लेक्चर को रिकॉर्ड भी करना पड़ता है। तो रिकॉर्डिंग के लिए अगर आप गूगल क्लासरूम की फ्री एप्लीकेशन यूज़ करें तो फ्री एप्लीकेशन में गूगल क्लासरूम में गूगल मीट में रिकॉर्डिंग का फीचर अवेलेबल नहीं है। उसके लिए आपको कोई थर्ड टूल यूज़ करना पड़ रहा है, जिसमें से आपको दो के नाम मैंने जस्ट बताया कि एक स्क्रीन कास्टिफाई है, एक लूम है, और इनके अलावा काफ़ी सारे और एड ऑन्स अवेलेबल हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट कि आप किस तरह का ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं, वो गूगल क्रोम है, मोजिला फायरफॉक्स है, ओपेरा है, जो भी है, और उसके साथ कौन सा एड ऑन जो है वो बेहतर आपको लग रहा है कि काम कर रहा है, आप चूज़ करके अपने लेक्चर को रिकॉर्ड कर सकते हैं। सो दिस वाज द वेरी ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द गूगल क्लासरूम। अब हम करते ये हैं कि माइक्स आप लोगों के लिए ऑन कर देते हैं। अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं तो यू मे आस्क नाउ। जी, do we have any questions from the audience? Assalamualaikum. Sir, I'm Rubina Siddiq, assistant professor from Rawalpindi Women University. जी Sir, जी I have a जी question. जी सर जी हम यहाँ पे हमारा LMS भी डिवाइस हुआ, और जब कोविड के दौरान तो हम क्लासेस लेते रहे गूगल मीट पे, हो तो उसमें रिकॉर्डिंग होती थी। वो क्या ऑप्शन फिर यूज होता होगा? क्योंकि हम वैसे हमने अलहदा से ये लूम और ये जो आप बता रहे हैं ये हमने अलहदा से सीखा, लेकिन रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली होती थी। वो एडमिनिस्ट्रेटर की तरफ से होती थी, वो कोई वहां पे यूज करते होंगे, हाँ ये जी, काइंडली मुझे बता। उनके पास फिर पेड वर्जन होगा गूगल क्लासरूम का। अगर आपके पास पेड वर्जन है गूगल मीट का तो उसमें रिकॉर्डिंग जी आप कर सकते हैं, हो जाती है ऑटोमेटिकली। लेकिन अगर पेड वर्जन नहीं है इंडिविजुअल के पास या किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास और आप फ्री वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो फ्री वर्जन में आपको रिकॉर्डिंग की ऑप्शन नहीं मिलती। उसके लिए जी आपको कोई भी थर्ड टूल ठीक है, यूज़ करना पड़ता यही है। वजह होती होगी, क्योंकि सर हम फिर अपने स्टूडेंट के साथ ना कंपलसरी होता था, हमने लेक्चर शेयर भी करने होते थे बाद में भी, जी जी, क्योंकि ऐसा ही। कनेक्टिविटी का मसला होता था। तो ठीक है, थैंक यू जी। वेलकम। अस्सलाम वालेकुम सर।
जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब। जी करामत साहब शायद बात कर रहे थे पहले। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर काइंडली ये बता दें कि ये जो हम लोगों ने बनाई है ऑनलाइन क्लासरूम गूगल क्लासरूम, तो इसमें ये बता दें कि स्टूडेंट्स किस तरह से असाइनमेंट सबमिट करवाएंगे। स्टूडेंट्स अपनी असाइनमेंट सबमिट करवाने के लिए अपनी जो स्टूडेंट्स का है अपना क्लासरूम का जो इंटरफेस है उसमें जाएंगे और उनके सामने वो असाइनमेंट डिस्प्ले हो रही होगी। तो उसमें असाइनमेंट की सबमिशन में वो जिसमें ये आपके सामने है, वो जैसे ऐसे लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे, ये जो आपके पास है उनके पास इंफॉर्मेशन आ रही होगी कि टीचर ने ये असाइनमेंट पोस्ट की है, दे आर सपोज टू क्लिक ऑन दिस लिंक, तो उनके सामने वो इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि